آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ ریاستی وزیر کے ٹی آر نے بین الاقوامی شہرت یافتہ ایرو اسپیس فیکٹری سیفران کا کیا افتتاح۔ بیرونی سرمایہ کاروں کو سہولتیں پہنچانے میں تلنگانہ سر فہرست، کے ٹی آر نے کیا خطاب۔ ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے بونال تہوار کے سلسلے میں منعقد کیا جائزہ اجلاس، بہتر انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں حکومتی اسکیمات کی مؤثر عمل آوری میں مصروف۔ دلت بندھو اسکیم کی منظورہ وہیکلز کو رکن اسمبلی کاروان نے کیا تقسیم۔ پٹن چیرو حدود میں مرغ بازی کا ریاکٹ بے نقاب، 19 افراد بشمول تلگو دیشم کے سابق رکن اسمبلی گرفتار، نقد رقم اور مرغ کیے گئے ضبط۔ دیکھیں گے خبروں کی تفصیل۔ ریاستی وزیر آئی ٹی اور صنعتیں کے ٹی راما نے حیدرآباد میں ایرو اسپیس فیکٹری سیفران الیکٹریکل اینڈ پاور فیکٹری کا افتتاح انجام دیا۔ ریاستی وزیر کے ٹی آر نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیفران ہندوستان میں پہلے ہی سے ایچ اے ایل کے ساتھ اشتراک کرتے ہوئے فیکٹریز چلا رہا تھا، تاہم حیدرآباد میں پہلی مرتبہ ورلڈ کلاس کمپنی نے 8 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے اور 250 افراد کو اس کمپنی سے روزگار بھی حاصل ہوگا۔ اس موقع پر سیفران کمپنی کے سی ای او کے علاوہ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے اور دیگر بھی موجود تھے۔ Ensured that Safran was given the confidence from all stakeholders to get this MRO to Hyderabad. We were amongst the first state governments to represent to Government of India for rationalizing the GST on MRO to make Indian MRO industry globally competitive, because it's important to understand that this MRO in Hyderabad will not just cater to airlines in India. I am hopeful and I am very confident a lot of Middle Eastern airlines will also send their planes here. I am also very confident that a lot of airlines based in Southeast Asia will also use this facility for all of their aircrafts as well. This new investment is a huge endorsement for the robustness of aerospace ecosystem in Hyderabad. I am sure this will encourage other global aerospace and defense investors to choose Telangana for their Indian foray. What I am even more happy about, the three things that were mentioned by Olivier today. Of course, we have the 2 factories that have opened today, and the third investment that is announced today, MRO. He also announced a digital transformation center. Now, Hyderabad, as you all know, is an important technology hub in the country and one of the important technology hubs in the world. And with about 800 employees at the digital transformation center for Safran, this makes it the 4th investment of Safran in about 6 years, and I think شہر کے مختلف اسمبلی حلقہ جات میں تلنگانہ حکومت کی دلت بندھو اسکیم پرجوش طریقے سے چلائی جا رہی ہے اور اس اسکیم سے منظور ہونے والی گاڑیوں اور دیگر اشیاء کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت مجلس رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے دلت بندھو اسکیم کے تحت منظورہ وہیکلز کی تقسیم عمل میں لائی۔ ٹولی چوکی گنبدان قطب شاہی روڈ پر واقع ایک فنکشن ہال میں منعقدہ تقریب میں تقریباً 100 خاندانوں میں اسکیم سے منظورہ اشیاء بشمول وہیکلز تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز اور نمائندہ کارپوریٹرز کے علاوہ حکومتی عہدیدار بھی موجود تھے۔ ایک منٹ ہو گیا۔ اوکے ایک منٹ سر۔
साहब एक मिनट इधर साहब पूरा అందరూ హాల్లో వచ్చి కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాను. रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने बोनाल त्यौहार के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया और इंतज़ामात का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। उन्होंने हुकूमती अहदेदारों पर जोर दिया कि बेहतर इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन ग्रामी, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली तौर पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने बोनाल त्यौहार के इंतज़ामात के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि पुराने शहर के बोनाल जुलूस को पुरअमन बनाने के सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि क़ब्ल अज़ीं ही हैदराबाद में CCTV कैमराज नस्ब करते हुए 24 घंटे निगाह रखी जा रही है। टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बोनाल त्यौहार के लिए 15 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जबकि 100 करोड़ रुपये के तामीली काम पाए तकमील किए गए हैं ताकि भक्तों को किसी भी किस्म की तकलीफ दरपेश न हो। విశ్వవ్యాప్తమై కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాలకు మరి కల్చరల్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఇంకా మిగిలిన కార్యక్రమాలు ఏముంటాయనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను పెద్దలందరితో కూర్చొని ఇప్పటివరకు చర్చలు జరిగినాయి. డెఫినెట్గా వాళ్ళు అనుకున్న మేరకు పూర్తి స్థాయిలో మరి ప్రభుత్వం సహకరిస్తుంది. మీకేమన్నట్టు అడగల్ ప్రొటెక్షన్ అనేది మనకున్న ఇంటెలిజెన్స్ కానీ లేకపోతే ల్యాండ్ ఆర్డర్ విషయంలో కానివ్వండి, ట్రాఫిక్ TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव की हिदायत पर TRS अरकान असम्बली गोपीनाथ सुधीर रेड्डी और दीगर ने जुबली हिल्स, LB नगर और दीगर मुकामात पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये इजाफे के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म करते हुए मरकज़ी हुकूमत से इजाफे से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। जुबली हिल्स हल्के असम्बली के यूसुफ गुड़ा के पास TRS अरकान असम्बली गोपीनाथ D नागेंद्र और LB नगर में सुधीर रेड्डी की क़यादत में धरने मुनज़्ज़म किए गए। ఈరోజు ప్రజా వ్యతిరేక మన ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు మరొకసారి ప్రజల మీద 50 రూపాయల గ్యాస్ భారం మోపింది. 2014లో మోదీ గారు అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 760 రూపాయలు పెంచింది. అంటే దాదాపు 163% ఈరోజు పెరగడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రజలు ఈ భారాన్ని మోయలేకపోతున్నారు. దీనివల్ల ప్రతి దాని మీద దాదాపు రేట్లు పెరిగినాయి, అంతా రేటు పెరిగినాయి. డీజిలు, పెట్రోలు మరియు గ్యాస్ ధర గణనీయంగా పెరిగిపోవడం వల్ల సామాన్యుని బతుకు భారం అయిపోయింది. కాబట్టి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు అవలంబిస్తున్న మోదీ గారు వెంటనే గద్దె దిగాలి. మీకు పాలించే హక్కు లేదు. ఎందుకంటే సామాన్యుని మీద భారం మోపుతా ఉన్నాము. ఈరోజు రేపు రాబోయే రోజులలో ఆదాని కానీ ఆయన ఆస్తులు కూడా పెట్టడానికి ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం ఇవన్నీ పెంచుకుంటూ పోతామని ఈ సందర్భంగా మనవి చేసుకుంటూ ఉప్పల్ నియోజకవర్గంలోని మన నాచారం డివిజన్లో మరి కార్పొరేటర్ గారి ఆధ్వర్యంలో
పెంచిన గ్యాస్ ధరలకు సంబంధించి ఈరోజు ఒక నిరసన ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. మరి ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా మా శాసనసభ్యులు సుభాష్ రెడ్డి గారు పాల్గొనడం జరిగింది. అలాగే టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. మరి 400 రూపాయలు ఉన్నప్పుడు ఏదైతే స్మృతి ఇరానీ గారు ఈరోజు కేంద్ర మంత్రి గగ్గోలు పెట్టి మరి అల్లకల్లోలంగా చేసి 400 రూపాయలకు మరి 400 రూపాయలు గ్యాస్ అవుతుందా అని చెప్పేసి గగ్గోలు పెట్టి ధర్నాలు చేసిన ఫోటోలు కూడా మీకు పెట్టడం జరిగింది. అట్లాంటిది ఈరోజు 1105 రూపాయలు ఈరోజు గ్యాస్ ధర అయ్యింది. సామాన్య ప్రజలు గ్యాస్ వాడే పరిస్థితిలో లేరు. దానికి నిరసనగానే మేము ఈరోజు మరి 3 రాళ్ల బదులు 3 సిలిండర్లు పెట్టేసేసి ఇలా टीआरएस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए रियासती बीजेपी कायदीन से मुतालबा किया कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर दबाव डालते हुए कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दिलाने के इक़दाम करें। उन्होंने कौमी बीजेपी की आमिला मीटिंग में हैदराबाद के नाम को तब्दील करने के एजेंडे की सख्त मजम्मत करते हुए बताया कि बीजेपी कायदीन मरकज़ी वज़रा भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, जिसका खैर मकदम किया जाता है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर को फ़रोग़ देने के लिए क्या इक़दाम किए, इसकी वजाहत करें। పాపం మన చివరికి వాళ్ళ పర్సనల్ పార్టీ మరి విలేకరులు అడగచ్చు మరి గదేందుకు సార్ మీకని మొన్న సభలో బాగా మీటింగ్లో చూసినాం. బీజేపీ పార్టీని రథయాత్ర ద్వారా ముందుకు సాగించినట్టు ఎల్కే అద్వానీ గారు సభలో నాకు ఇక్కడ కనబడలేదు. కాబట్టి ఐఎన్పిఆర్ ద్వారా అడుగుతున్నాం, మరి ఎల్కే అద్వానీ గారు వచ్చారా, వారి ఆరోగ్యం బాగుందా, వస్తే వారు ఎక్కడున్నారని కూడా అడుగుతున్నాం. ఇది పర్సనల్ క్వశ్చన్, పార్టీ పరంగా వారిని అడుగుతా ఉన్నా. కేంద్ర హోంమంత్రి రాజీనామా చేయలేదానికి మాకేం సంబంధం అండి? ఉగ్రవాదుల సమస్య ఎవరిదని, దేశంలో ఉగ్రవాదులు ఎవరు నస్తురు పోతున్నట్టే చూడాల్సింది ఎవరు? కేంద్రం కదా, కేంద్ర ఇంటెలిజెన్స్ ఏం బీక్తుంది? వాళ్ళకి ఐడియా లేదా? ఇంత ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవారికి ఎందుకున్నారు? వాళ్ళు పట్టుకోవాలి, అరెస్ట్ చేయాలి. దోషం నుంచి అంటారు కదా, ఎలక్షన్ రాగానే అయితే పాకిస్తాన్, లేకపోతే బంగ్లాదేశ్, లేకపోతే రష్యా, లేకపోతే ఉక్రెయిన్ వార్, లేకపోతే ఇంకో వార్, మేము ఇది చేసినాం అది చేసినాం అంటారుగా. ఇంత పొడిసైతే మరి ఈ దేశంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు పట్టుకోలేకపోతున్నారు? మరి పట్టుకోవాలి. बदंगपेट बल्दिया की मौजूदा मेयर प्रजीता नरसिम्हा रेड्डी और टीआरएस के 9 कॉरपोरेटर्स ने दिल्ली में कांग्रेस कायद राहुल गांधी से मुलाकात की और बाज़ाब्ता कांग्रेस पार्टी में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर ली। प्रजीता रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर इक़दार की हामिल पार्टी है और यही वजह है कि उन्होंने कई काउंसलर्स के साथ टीआरएस छोड़ते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बड़ंगपेट कॉरपोरेशन के मुकाबला करके जीते। बड़ंगपेट कॉरपोरेशन तरके के लिए मैंने मिनिस्टर साहब केटीआर बुलाने के पर टीआरएस ज्वाइन करके मेयर दिए। मेयर की शायद से काम कर रहे हैं, आवाम के लिए ज्वाइन करके और ज्वाइन करके लिए और पार्टी की तरके के लिए मैंने काम किया। थोड़े दिन के बाद इस तरक्की के काम पर रुकावट डालने शुरू हुआ, इसलिए मैं टीआरएस रिज़ाइन करके कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के और पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी सर के साथ सदारत में और मेरे साथ कॉरपोरेटर्स आवाम के साथ कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुआ। कांग्रेस पार्टी एक्स सीएम वाईएसआर हयाम से मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिए हुए, अभी टीआरएस आने के पहले मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देते बोलने के वादा कर दिए, मगर इसके वादा 8 साल हो गए।
2 माह قبل ईद उल फितर के दूसरे दिन हुई शदीद बारिश के बाद याकुतपुरा हलके के यसरफ नगर, मदीना नगर और धोबी घाट के अलावा उसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों में वाक़ मकानात में पानी दाखिल हो गया था, जिससे कई ख़ानदान मुतासिर हुए थे। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर बारिश से मुतासरा तकरीबन 400 अफराद में 15 लाख रुपये तकसीम किए। उन्होंने बताया कि माबखी मुतासरीन को जुमे के दिन रकम तकसीम की जाएगी। इस मौके पर मुतासरीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी से इजहार तशक्कुर किया। मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा पार्टी के कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। चार मई को ईद उल फितर के दूसरे दिन जो बारिश हुई थी, उस बारिश में यसरफ नगर, मदीना नगर, धोबी घाट, उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों में घरों में पानी भर गया था और यानी 3-3 फीट तक पानी था। लोग बालाई मंदिर पे हिस्सा बना लिए, कुछ लोग घर खाली करके चले गए थे। बहुत भयानक हालत थे। उसके बाद पूरे बल्दिया के ऑफिसर आए, नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट ने इस ताल्लुक से बल्दिया के आला अहदेदारों से बात करके कामों में तेजी पैदा करने के लिए दबाव डाले। साथ साथ सदर मजलिस ने हैदराबाद कलेक्टर को तवज्जो दिलाई, तो उनकी तवज्जो दिलाने पे कलेक्टर हैदराबाद इन इलाकों में आए, पूरा दौरा करे, कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, जायजा लिए और सदर साहब ने उनको पाबंद किया कि यहाँ के मुतासरीन में कुछ गवर्नमेंट की तरफ से रकमी इमदाद दी जाए। कलेक्टर MRO के 4-5 टीमों को भेज के सर्वे कराए, रिपोर्ट बनाए और वो दिन तक काफ़ी ताख़ीर हो गई, लेकिन मंजूरी हुई है उसकी। यानी पर हेड 3,800 रुपये के हिसाब से तकरीबन 400 के करीब लोगों को तकसीम हुए। 15 लाख रुपए की रकम हुई जो तकसीम की गई। आज थोड़े लोगों को यानी आधे से ज़्यादा लोगों को आज दे दिए हैं। 100-150 लोग को बाकी है, कल देंगे उनको। बहरहाल जो मुस्तहिक लोग थे जिसका सर्वे वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने उत्तर प्रदेश के ज़िले यूरोवांचल के शहर वाराणसी में उर्दू यूनिवर्सिटी के ज़ेली इलाक़ाई मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इफ्तिताही तकरीब में IIT पटना के डायरेक्टर प्रोफेसर TN सिंह, प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, वाइस चांसलर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी और प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि वाराणसी, देवरिया, मिर्ज़ापुर, आज़मगढ़ और दीगर अजला के तलबा को मानव सेंटर के लिए पटना, बिहार जाना पड़ता था, ताहम अब उन्हें सहूलत हासिल होगी। मेन कैंपस तो हैदराबाद है। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, लेकिन हमारे बहुत सारे सैटेलाइट कैंपसेस हैं, बहुत सारे रीजनल सेंटर्स हैं और बहुत सारे सब रीजनल सेंटर्स हैं। बनारस एक सब रीजनल सेंटर होगा। हमारे पास दोनों मोड है, रेगुलर मोड की एजुकेशन भी है और डिस्टेंस मोड का भी है। डिस्टेंस के लिए हमारे पास बहुत सारे सेंटर्स हैं, भारत के कोने कोने में सेंटर्स हैं। सर, ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ये प्राइवेट सेक्टर से है कि सरकारी? नहीं, ये सरकारी है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल के ऊपर भी है। ये अकेली नेशनल यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं मानू। और ये पूरे हमारे कोऑपरेशन से चलती है, यानी जो स्टेट के और भी एजुकेशन सेंटर्स हैं या फिर वो लोग के जो इसमें एकेडमिकली इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे दरभंगा कैंपस है, तो वो दरभंगा कैंपस सारे का सारा नीतीश जी का बनवाया हुआ है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में जो भोपाल में हमारा कैंपस है, उस भोपाल को जो है वो वहाँ के वो जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ज़मीन दी हुई है।
तो उस पर हमारा बना है। कश्मीर में हम बडगाम में कैंपस बनाने जा रहे हैं, उसके लिए फेंसिंग हमने करवा दी है, वो हमें जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने दिया है। तो हम जहाँ जहाँ सेंटर बनवाते हैं, लखनऊ में हमारा सेंटर है, लखनऊ में हमारा सैटेलाइट कैंपस है। दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन के उर्स तक़ारीब का जुमेरात को इख्तिताम अमल में आया और उसके आखिरी दिन मजलिस के मोतमद अमूमी सैयद अहमद पाशा क़ादरी की क़यादत में एक वफ़द ने दरगाह पर ग़िलाफ़ मुबारक पेश की और चादर गुल चढ़ाई। वफ़द में रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद ख़ान, रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मजलिस के कॉरपोरेटर, सदूर मोतमदीन और पार्टी के कारकुन भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली अहमद पाशा क़ादरी ने बताया कि मुल्क के भाईचारा, अमन और सलामती के लिए दुआ की गई है। दरगाह के मुंतज़िम सैयद महबूब ने मजलिसी वफ़द का खैर मक़दम किया। क़दीम और मारूफ दरगाह शरीफ हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली में वाक़ है, जहाँ उर्स मुबारक की तक़ारीब का आज अख्तिताम हुआ। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल ख़त्म के दिन यानी तीसरे दिन मजलिस अराकीन असम्बली और काउंसलर सदूर मोतमदीन मजलिस की जानिब से ग़िलाफ़ मुबारक पेश करते हैं और चादर गुल का नजराना पेश करते हैं। चुनांचे आज हस्ब रिवायत जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब रुकन असम्बली, जनाब रियाजुल हसन अफंदी रुकन खानुस साज काउंसिल और मैं हमारे कॉरपोरेटर्स सदूर मोतमदीन बारगाह में हाज़िरी दिए, ग़िलाफ़ मुबारक का नजराना पेश किए, चादर गुल पेश किए, फातिहा ख़ानी हुई। तमाम की सलामती और मुल्क की अमन के लिए और तमाम मुसलमानों को खुशहाली, आफत व बलिया से महफूज रखने के लिए दुआ की गई और ये सिलसिला बरसों से जारी है, क्योंकि उर्स के अय्याम में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन इसाब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर ये 3 रोज़ा उर्स की तक़ारीब के इंतज़ामात महकमे बरक़ी आबरासानी, वाटर वर्क्स और बरक़ी आबरासानी बल्दिया ये तमाम की तरफ से नुमाइंदगी करके काम कराए जाते हैं। इस साल भी माशाअल्लाह से इंतज़ामात हुए मजलिस की नुमाइंदगी पर, और यहाँ मुकामी हमारे जितने सदूर मोतमदीन हैं वो भी तकरीबन 15 दिन से इस इंतज़ामात में मसरूफ़ है। बहरहाल बारगाह में हाज़िरी दी गई। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस सीबी आनंद ने ईद उल अज़हा और बोनालू त्यौहार के पेश नज़र पुलिस अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने हालिया चंद दिनों के दौरान पेश आए वाक़यात और प्रोग्रामों में पुलिस के इंतज़ामात की सताइश की। पुलिस के अहदेदारों को मवेशियों की मुंतक़ली पर नज़र रखने की भी हिदायत दी गई, जबकि दस्तावेज़ात की जामे जाँच करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई तंजीमें अमन को मुतासिर करने की या फिर गाड़ियों को रोकने की कोशिश करती है तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने अमन कमेटियों की असर नो तश्कील और इसमें नौजवानों की भर्ती पर जोर दिया। त्यौहार और ईद के दौरान फ़िरक़ा वाराना शरपसंदों पर नज़र रखने की भी हिदायत दी गई। टास्क फोर्स और जोन टीम ने बेगमपेट पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए ममनुआ ई सिगरेट फ़रोख्त करने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया, जबकि 2.5 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक 22 साला सी कटारी साकिन रसूलपुरा बेगमपेट को हिरासत में लिया गया, जबकि रेहान खान नामी फ़र्द मफरूर बताया गया है।
पटनचेरू पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ चिन्ना कंदरला में धावा करते हुए पुलिस ने मुर्गबाजी का एक रैकेट बेनकाब किया। पुलिस ने मज़कूरा मकाम से मुर्गबाजी के ऑर्गेनाइजर्स के बशमूल जुमला 19 अफराद को हिरासत में लिया, जबकि 13 लाख रुपये नकद रकम भी जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक जुमला 31 मुर्ग और 26 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है, जबकि एक तेज़ धार वाली चाकू भी बरामद की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रमना कुमार ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर तफसीली मुआयना भी किया। इस मुकाम से पुलिस ने ऑर्गेनाइजर्स व साबिक़ रुकन असम्बली तेलुगुदेशम सी प्रभाकर को भी हिरासत में लिया। ముప్పై కత్తులు ఈరోజు సాయంత్రం మాకు 5 గంటల ప్రాంతంలో నాకు నమ్మదగిన సమాచారం వచ్చింది. ఈ చిన్న కంజల్ర విలేజ్లో ఒక సర్వే నెంబర్ 250లో ఒక మామిడి తోట ఉంది. ఆ మామిడి తోటలో పెద్ద ఎత్తున ఈ కోడి పందాలు ఆడిస్తున్నారని తెలిసింది. దానిలో మా టీము ఇన్స్పెక్టర్ పటంచెరు గారు, నేను, అమీన్పూర్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ మా అడిషనల్ ఇన్స్పెక్టర్ అందరం కూడా టీంతో వచ్చాము. ఇక్కడికి వచ్చేవరకు దాదాపు ఒక 60-70 మంది ఇక్కడ ఆడుతున్నారు. మేము ఇమ్మీడియట్లీ వాళ్ళను క్యాచ్ చేసే వరకు మాకు ఒక 21 మంది దొరికారు. అందులో మెయిన్గా ఆర్గనైజర్ ఎవరంటే ఈయన చింతంనేని ప్రభాకర్. ఈయన XML ఆఫ్ దెందులూరు, ఏలూరు డిస్టిక్. అండ్ కృష్ణంరాజు, అక్కినేని సతీష్ అండ్ బర్లా శ్రీనివాస్ వీళ్ళందరూ కూడా ఆర్గనైజర్ ఉండి వీళ్ళే ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారని చెప్పిండ్రు. మేము ప్రస్తుతానికి ఒక కస్టడీలో మాకు అక్కినేని సతీష్ అండ్ బర్లా శ్రీను మరియు ఇంకొక 19 మంది దాకా మా కస్టడీలో ఉన్నారు. ఇక్కడ 26 వెహికల్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. అమౌంట్ వచ్చి 13,12,140 రూపాయలు సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఒక 27 ఫోన్లు సీజ్ చేయడం జరిగింది. లైవ్ బర్డ్స్ ఒక 31 సీజ్ చేయడం జరిగింది. చనిపోయిన ఒక 4 సీజ్ చేయడం జరిగింది. కత్తులు అంటే కోడి పందాలకి యూజ్ చేసే కత్తులు ఒక 30 కత్తులు కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. దీనిపై లోతుగా విచారించి ఈయన ఇప్పుడు ఏదైతే చింతంనేని ప్రభాకర్ ఉన్నాడో ఆయన XML ఆఫ్ దెందులూరు, ఆయన గురించి ఒక 3 టీంలు ఫామ్ చేయడం జరిగింది. డెఫినెట్గా ఆయన ఇమీడియట్లీ అరెస్ట్ చేస్తాం. కృష్ణంరాజును కూడా అరెస్ట్ చేస్తాం. మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే రెస్పాన్స్ ఉన్నారో ఈ 26 కాలర్కి రెస్పాన్స్లు ఎవరున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా కంపల్సరీ చేస్తాం. ఇట్లాంటిది ఎట్టి పరిస్థితిలో సహించము. ఎందుకంటే ఇలా మీద పీడీ యాక్ట్ కూడా పెట్టడానికి మేము వెనుకాడమని చెప్పాం. आइए देखेंगे वफ़े के बाद की खबरें। बहादुरपुरा रनमस्तपुरा में वाक़े मसलक के करीब जानवरों की फ़रोख्त पर पुलिस की जानिब से पाबंदी लगाने पर मकामी क़ुरैश बरादरी में बेचैनी देखी गई। फौरी तौर पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने मकामी वाक़े पर पहुँचकर बहादुरपुरा पुलिस इंस्पेक्टर से मुलाकात की और जानवरों के सर्टिफिकेट्स और दीगर अहम कागजात बताते हुए ख़रीदो फ़रोख्त को जारी रखने का मुतालबा किया, जिसके फौरी बाद मकामी अफराद ने चैन की सांस ली और ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला शुरू हुआ। चोरी का कारोबार है क्या? आप सोशल मीडिया डाला तो सोशल मीडिया पे आप उस पर एक्शन दो। चोरी में पेपर चोरी का है भाई आपको सही बोला। पुलिस ब्लेम होना, पुलिस वाला कुछ भी। अरे आओ साहब जो फेसबुक पे जा रहा गलत उस पर एक्शन ले बोलो। पुलिस को कमिश्नर साहब को लिए बोलो। अब बेचना नहीं वो तो घर में रह के बेचना। आप घर में रह के बेचना क्या बोलिए आप? अभी रोड पे बिकता ना माल, घर में रह के तो फोन आके घर में देखता बोलो। आप जरा बोलिए। मेन रोड है, फोन भी है तो वैसा वीडियो डाले, वीडियो जो डाला सोसाइटी उनका हमारे नंबर दे, उनके ऊपर केस बुक कर दे। काम की बाहर की जागीर है, वीडियो डाल दिया तो नहीं सब आगे सर नहीं देंगे वो कितने फिर आपको भाई ना साहब, अगर आप उन्हें वीडियो डाला तो दियो, मैं भी उसके ऊपर एक्शन लेता हूँ।
हुकूमत जो जानवर का इजाजत दे रही वही जानवर है साहब पूरा। हुकूमत जो जानवर का इजाजत दे रही वही जानवर है पूरा। लीगल है, बच्चे इलीगल काम करे तो हम कुछ सपोर्ट नहीं देते। बच्चे लीगल काम कर रहे थे इसमें। राजनगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके चिंतल में रिंग रोड पिलर नंबर 206 के करीब हुए सड़क हादसे में 19 साला लड़की जख्मी हो गई, जिसे बगैर इलाज दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया, जिसमें देखा जा सकता है कि आमदन कार से लड़की को टक्कर दी गई है और राह फरार इख्तियार की गई। ताहम कामरान नामी नौजवान मस्कुरा कार चला रहा था, जिसे पुलिस ने बाद हिरासत में ले लिया और केस दर्ज करते हुए पूरे मामले की तहकीकात का आगाज किया गया। बालापुर तालाब में एक शख्स की नाश दस्तयाब हुई, जिसकी शनाख्त 20 साला नूरुल अमीन साकिन ग्रीन सिटी मल्लापुर विलेज की हैसियत से की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम हादसे पर पहुंची और नाश को निकालने के बाद बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया गया और इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया गया। मुख्तलिफ ज़ावियों से पुलिस तहकीकात कर रही है कि आया ये केस खुदकुशी का मामला है या फिर कत्ल करने के बाद नाश को तालाब में फेंक दिया गया है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर KTR ने बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता एरो स्पेस फैक्ट्री सैफरान का किया इफ्तिताह। बैरूनी सरमायाकारों को सहूलतें पहुंचाने में तेलंगाना सरे फहरिस्त, KTR ने किया खिताब। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने बोनाल त्यौहार के सिलसिले में मुनक्किद किया जायज़ा इजलास, बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में हुकूमती स्कीमात की मौसर अमलावरी में मसरूफ। दलित बंधु स्कीम की मंजूरा व्हीकल्स को रुकन असम्बली कारवान ने किया तकसीम। पटन चेरो हदूद में मुर्गबाजी का रैकेट बेनकाब 19 अफराद बशमूल तेलुगुदेशम के साबिक रुकन असम्बली गिरफ्तार, नगद रकम और मुरक किए गए जब्त। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।